Hello everyone in the Ansari, and today we will see that what are the questions both of prelims of the PYQs of the UPSC civil service exam and the mains questions which have came in the real exams. So we'll be dealing them one by one. So the very first question is the Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of Federation. So what फेडरेशन it यूएस होना चाहिए फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट तो yes, I think the answer will be Canada, Ashika. कनाडा हो सकता है हाँ Yes, क्योंकि इसमें rather क्वाजी US. जुडिशल क्वाजी फेडरेशन का बात होता है कनाडा का सिर्फ फेडरेशन है उस थोड़ा ताकतवर है मतलब सेंट्रलाइज्ड है इसलिए आई थिंक Because US, because US has a full federalism. फुल India is फेडरल not having ट्रू some इंडिया इज quasi अ क्वाजी federalism. फेडरलिज्म Yeah. ठीक है Which नेक्स्ट वन are the following feature common to both the Indian Federation and American Federation? Single citizenship, free list, dual judiciary, a federal court to interpret the constitution. So डी होना Karuna, चाहिए करना विल ज्वाइन yes. लेटर Okay, so the answer is D, a federal बिकॉज Supreme Court to interpret the यस constitution. यूएस हैव डुअल सिटीजनशिप और बाकी फिर डुअल जुडिशरी इंडिया के पास नहीं इंटीग्रेटेड जुडिशरी है तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट यूएस के पास एंड इंडिया है सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन India has three lists, but US has two lists. टू लिस्ट ओके Which one of the following are the matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than half one of the states? यानी आर्टिकल ओके 360 यस सेकंड की बात हो रही है. ratification means it is related to the federal provision that is why the ratification of the states are required so abolition of legislature council of the state will be there then any of the list in 7th schedule this will be there. Well, also I No, believe no, that 4 the नहीं 11, होगा 1 2 3 होगा yes, yes, 4 will 4 not 1 be इज there. स्पेसिफिक होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे वो भेजते हैं रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट कैन abolish the legislative council of the state तो 4 नहीं Yeah. होगा So, abolition of legislative council of state is solely depends on the discretion of the legislative assembly of the state. And if it passes a resolution in that regard, so that is then the house is completely abolished. true The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. So, and the second is the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. So, I think दोनों both the गलत है answers are correct. प्रवेश आई कैन इनिशिएट यू कैन जस्ट करेक्ट मी लेटर ऑन ठीक है तो पहले वाला जो लिखा हुआ है कि डिफाइंस नहीं किया जाता इट इज नॉट अ लिस्ट इट इज नॉट मेंशन्ड बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड दैट तो ये नहीं हो सकता एग्जैक्ट वर्ड नहीं तो वो Okay, so इनकरेक्ट the होगा neither one yeah neither two first statement is wrong because the basic structure is not defined. It is mentioned, but it is not defined. It is mentioned in the form of principle, but it is not defined. The defining power lies with the Supreme Court. The Constitution of India provides for judicial review. No, it do not provide. The judiciary provides for the judicial review by exercising its judicial power, judicial scrutiny power. So here the both the options are wrong. Now the first question of the descriptive nature is Indian Indian Constitution. constitution is a law's paradise डिस्कस करना है इसको Yes. तो आई So कैन as a इंटरप्रेट फर्स्ट रविश देन यू कैन एड okay, ऑन एंड देन यू करेक्ट मी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेवरल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज एंड लॉ इज पैराडाइज क्यों है बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज difficult for the common man to interpret. That is why it is called a law's paradise. It is very long, it is very comprehensive. तो बोल सकते हैं कि उसके हिसाब से भी और डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं लॉयर डायरेक्शन एक डायरेक्शन यूनिक डायरेक्शन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर भी इसमें आता है फिर जुडिशियल रिव्यू का बात होता है इसमें लॉयर पैराडाइज इसलिए आई थिंक इट इज ऑन दैट लेंस रविश यू कैन बताता हूँ तो इसके तीन रिव्यू पॉइंट हैं.
था कोई इसका point होता है। पहला पॉइंट होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनमें 2/3 हम्म मेजोरिटी लॉयर्स। हम्म पहला। दूसरा ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव मैटर्स लिखे गए हैं वो लीगल ल्यूमिनरी भाषा में लिखे गए हैं, यानी वो हाईली लीगली यस कोडिफाइड। हम्म उनको इंटरप्रेट करने में सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग डॉक्ट्रिन्स की मदद लेती है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पीस एक्सेप्टेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्लेशन। और तीसरा ये है कि इतना ज्यादा जो लीगल कोडिफाइड इंफॉर्मेशन है कि इसका जो नॉर्मल साइज होना चाहिए था वो हाईली बल्की हो गया। इसको इसी वजह से इसको एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लोअर्स लॉयर्स। पैराडाइज ओके सेकंड So वन now we have second question. unity Unity and and integrity of India was perhaps the single uppermost factor in the minds of the constitution maker कमेंट करना है इसके ऊपर में तो आई विल से दैट अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर जी वो कहे थे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तभी जा करके क्वाजी फेडरल प्रोविजन लाया गया इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजन लाया गया और क्योंकि डाइवर्सिटी इतना ज्यादा इंडिया में था तो देयर वाज अ चांसेस ऑफ अ बल्कनाइजेशन देयर वर चांसेस ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस स्टार्टिंग इन इंडिया एंड देयर ऑलरेडी इशू ऑफ पार्टीशन हैंगिंग ड्यूरिंग द 1947 के समय में और आफ्टरवर्ड्स आफ्टर मैट इट्स इम्पैक्ट इसलिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया keeping in the mind of the refugee crisis, keeping in the mind of the sovereignty issue over the POK issue, keeping in the mind of the Hyderabad in Junagadh integration and integration of the princely state, that is why the integrity was promoted. और उसके बाद ही फिर जो भी प्रोविजन लिया गया अंडर द सेंट्रल इनडिस्ट्रक्टिबल सेंटर ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स या दूसरा बात की जाए क्वाजी फेडरल प्रोविजन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सब इसी का हिसाब से किया आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए प्रवेश यू कैन करेक्ट मी और रिव्यू तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया जो अ, है वो आर्टिकल 1 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो आर्टिकल 1 जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है वही ये बताता है कि इंडिया का जो नेचर है वो किस तरीके से होगा। वो पूरा यूनाइटेड रहेगा और इंटेग्रिटी उसकी मेंटेन करने के लिए जो यूनियन पावर है उसको अटमोस्ट पावर दी जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, कमेंट कीजिए कि सिंगल अपर मोस्ट सेक्टर था वो कैसे था। हम बात करते हैं सिटीजनशिप की अंडर आर्टिकल 5। तो उसके अंदर बात की जा रही है कि सिंगल सिटीजनशिप ही दी जाएगी ताकि फ्रेगमेंटेशन ऑफ डाइवर्सिटी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी ना हो। दूसरा बात की गई है रेजिजुअरी पावर्स की, कि रेजिजुअरी पावर्स भी यूनियन को ही दी जाएगी ताकि जो स्टेट्स हैं वो रीजनल पेट्रियोटिज्म को बढ़ावा न दे और नेशनल पेट्रियोटिज्म अपहोल्ड किया जाए। तीसरा हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कि आपको लिबर्टी तो होगी लेकिन आपको उसको एक पब्लिक डोमेन के अंदर विद लॉ एंड ऑर्डर आपको एक्सरसाइज करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। आप जो भी कानून कर रहे हैं, जो भी स्टेट के अंदर काम होंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी वो जुडिशरी होगी, जो इंश्योर करेगी कि उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसकी डायरेक्शंस हैं, वो अक्रॉस दी जेनिथ ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट हो, ताकि एक यूनिफॉर्म लॉ ऑफ एप्लीकेशन इंडिया के अंदर रहे और रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो। उसके बाद हम बात करते हैं इमरजेंसी पावर की अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360, जिसके अंदर ये बात की गई है स्पेशली अंडर आर्टिकल 355 कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप डू नॉट ब्रेक। तो अंडर आर्टिकल 355 ही इमरजेंसी के अंदर यूनियन की पावर को बताया गया कि यूनियन किस तरीके से बात कर सकती है। देन आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट्स का प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, वहां पर भी इस तरीके का क्लोज है, जो यूनिटी अगर आप खराब करते हैं, इंटेग्रिटी के साथ खेलते हैं, तो आपको प्यूनिटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल दिया जाएगा। आर्टिकल 371 जिसके अंदर अलग अलग फीचर दिए गए हैं स्टेट्स को 371 से 371 जे तक, उसमें ये इंश्योर किया गया है कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को प्रमोट करने के लिए जो डाइवर्सिटी है स्टेट के अंदर और जो रीजनल डिमांड्स है, जो ट्राइबल्स की स्पेसिफिक नीड्स हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा ताकि डाइवर्सिटी प्रमोट हो नीचे से और यूनिटी प्रमोट हो ऊपर से। तो दिस इज हाउ वी विल डील विद दिस कंटिन्यू। yes okay we can move forward next question the constitution maker faced the great task of forging a common national identity in the face of unparalleled social and cultural diversity in India तो फेस अ ग्रेट टास्क ऑफ फॉर्जिंग कॉमन नेशनल आइडेंटिटी तो इसलिए आई थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आवर जो फाउंडिंग फादर्स बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर जी उनके साथ साथ बाकी लोग भी थे दे फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग डाइवर्सिटी इसलिए 8 शेड्यूल में लैंग्वेज को प्रमोट किया गया कॉमन इंडियन नेशनल लैंग्वेज नहीं किया गया
टू प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी, दूसरा कि अफर्मेटिव एक्शन बाकी जो जाति या फिर उसके लिए, फिर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए भी प्रमोट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 25 से लेकर 30 के बीच में कल्चरल माइनॉरिटी एंड लैंग्वेज माइनॉरिटी के बारे में बात किया गया। फिर डिफरेंट रीजन के हिसाब से यूटी का अपना गवर्नेंस सिस्टम बनाया गया और स्टेट का अपना। तो आई थिंक वी कैन से द अनपैरेलल सोशल कल्चर डाइवर्सिटी इंडिया में जो है उसको प्रमोट करने के लिए दे फेस द ग्रेट टास्क। प्रवेश बोलो कि कमेंट करना है इसके ऊपर ना। हाँ, तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर अंडर आर्टिकल 80 एंड 141 इन द राज्यसभा, वो सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो ट्राइबल्स के लिए ट्राइबल वेलफेयर कमेटी है, या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर जो ट्राइबल एरिया स्टेट है, वहां पर गवर्नर को वो पावर दी गई है कि ट्राइबल इंटरेस्ट के लिए जो ट्राइबल कमेटी यस उससे यूनियन स्टेट का लॉ वहां पर लागू होगा। तीसरा, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल कमिश्नर फॉर माइनॉरिटी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। आर्टिकल कौन सा है? 350 आर्टिकल डी है ना? यस। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक और जो रीजनल डाइवर्सिटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए बात की जाती है डीपीएचपी के अंदर। एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया जाता है ताकि जो एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी प्रमोट हो सके। और एंग्लो इंडियन तक को रिजर्वेशन दी गई है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनका जो बड़ा टास्क था वो कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, दैट वाज इंडियन स्पिरिट को बढ़ाना, और साथ ही साथ जो सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर उसको प्रमोट करना। और इसके अंदर हम रिलीजन की भी बात कर सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स सेक्युलरिज्म है उसको भी किस तरीके से साथ लेकर के और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। यस प्रवेश, और इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि जो जो ग्रेट टास्क जो था फॉर्जिंग ऑफ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, इट वाज नॉट फोर्स्ड, इट वाज फॉर द विथ रिस्पेक्ट टू द एकोमोडेटिव स्पिरिट एज इनविसाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया। एकोमोडेटिव स्पिरिट प्रमोट किया रादर देन कि फोर्स कि एक ही लैंग्वेज होना चाहिए, एक ही कल्चर होना चाहिए, एक ही कास्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। हर एक अलग अलग, जैसे प्रवेश ने कहा गवर्नर बनाया वहां में नॉर्थ ईस्ट में, वैसी प्रोविजन दिया है, लिंग्विस्टिक ऑफिसर का बात किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अफर्मेटिव एक्शन के लिए बात किया गया, फिर माइनॉरिटी राइट्स का हो गया, तो अलग अलग के लिए एक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए की बात की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रिंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्रिंट बोला है यहाँ पर। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉलोड फ्रॉम द कॉलोनियल लेंस का बात कर सकते हो, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वहां से इम्प्रिंट है इंडिया में। तो बाइकैमरलिज्म प्रमोट हुआ, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां से लिया गया, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट से इंडियन सिविल सर्वेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, और एक फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी का बात यहाँ पर लिया गया, तो इम्प्रिंट बोल सकते हैं। फिर और एडल्ट फ्रेंचाइज का बात कर सकते हैं इसमें, और प्रवेश क्या ऐड करना है, इम्प्रिंट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लेकिन लास्ट इम्प्रिंट। में ये भी बोल सकते हैं, लास्ट में ये भी बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो स्ट्रक्चर था वो ब्रिटिश से भी लिया गया, लेकिन ओवरऑल इंडियन सुटेबिलिटी, इंडियन कल्चर हेरिटेज को कैटर करने के लिए उसको इसके हिसाब से अडाप्ट किया गया, तो वो हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं। पूरे हाँ, प्रवेश तो ऐड इसमें कर। इसमें क्वेश्चन की शुरुआत हम यही करेंगे कि जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल सेटअप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से 1935 और 47 का, उसने कहीं ना कहीं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनको इम्पैक्ट किया, जिसका रिफ्लेक्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। पहला, रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है। रूल ऑफ लॉ में है इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो बात करता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पैटर्न पर स्टैब्लिश है। सिंगल सिटीजनशिप हमारे आर्टिकल 5 के अंदर है, तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कैबिनेट सिस्टम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन सिस्टम, जो कि हमने ड्रॉ किया बिकॉज ऑफ द फैमिलियरिटी विद दैट सिस्टम। देन प्रेरोगेटिव रिट्स, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंटरटेन करती हैं अंडर आर्टिकल 234, जिसके अंदर आपको रिट्स दिया जाता है, मेमोरेंडम, को वारंटो, सर्टिओरारी, एंड दीज आर 5 इन टोटल। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी प्रिविलेजेस है ताकि वो इंडिपेंडेंस से काम कर सके, उनको सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए। देन बाइकैमरलिज्म, द रूल ऑफ 2 हाउसेस। So these are the common features which we took from the British Constitution. But in the last, we have to say that British Constitution, the Indian Constitution, is not the replica of the British Constitution because it is Indian in spirit,
and is the amalgamation of various constitutions of the world on the Aristotle line. यस, नीचे कर थोड़ा प्रवेश। The making of the Indian Constitution is described as an attempt to a social revolution. तो सोशल रेवोल्यूशन का जब सोचते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिराइव्ड their own experiences of making of the constitution during the Nehru report or CDM on Gandhian mass movement and working of the 1935 act in their respective provinces 1931-7 वहां से उन्होंने यूज किया तब पता चला कि वी कैन यूज सोशल इकोनॉमिक मेजर सोशल इंटरवेंशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी वहां से अटेम्प्ट हुआ सोशल रिवोल्यूशन का तो हम लोग बात कर सकते हैं फिर कि रिजर्वेशन का अफर्मेटिव एक्शन का बात कर सकते हैं उसके बाद फिर माइनॉरिटी राइट्स का एडल्ट फ्रेंच यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया शुरू में सबको मिला महिला पुरुष सबको तो सोशल रिवोल्यूशन का बात करते हैं सोशली रेवोल्यूशन रहा माइनॉरिटी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का बात कर सकते हैं इसमें कि उनको अपलिफ्टमेंट मौका मिला 8th शेड्यूल में प्रोविजन में मिला ट्राइबल का आइडेंटिटी प्रिजर्व करने का मौका मिला तो ये सोशल रेवोल्यूशन का बात हुआ इट वाज अ वेरी यूनिक अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू द यंग डेमोक्रेसी लाइक इंडिया उस समय एंड प्रवेश यू कैन कम ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा क्यों बोला जाता है कि इट इज एन अटेम्प्ट टुवर्ड सोशल रिवोल्यूशन। इसके 3 या 4 कारण है। पहला कि कास्ट, तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिमूव करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन दिया गया, इस तरीके से सोसाइटी में रिवोल्यूशन लाया गया। रिलीजन, रिलीजन में डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण कास्ट, तो उसको हटाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लाई गई, एक्सेसिबल किया गया टेम्पल्स को फॉर एवरीवन, रिलीजियस साइट्स को फॉर एवरीवन। रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिहाफ पे पॉवर्टी थी, हंगर था, मेलन्यूट्रिशन था, उसको प्रमोट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाए गए। और कंजर्वेशन ट्रेडिशन जो था, हमारा ट्रेडिशन जो थे वो रिजिड थे, ऑर्थोडॉक्सी थे, उसको प्रमोट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री लॉज होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट जो गाइडेंस देगी, that will be totally derived from the constitution, which is the amalgamation of the tradition as well as the modernism. Then language के ऊपर आपने बता ही दिया कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक को प्रमोट किया जाता है। कोई एक लैंग्वेज नहीं, हमारे यहाँ पे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज का प्रावधान है। तो इस तरीके से जो सोसाइटी की अलग अलग डाइवर्सिटीज है उनको प्रमोट किया गया, उनमें रिवोल्यूशन लाए गए, उनमें रिफॉर्म लाए गए, और इस तरीके से इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड सोशल रिवोल्यूशन टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन बाय द पार्लियामेंट्री बिल ऑफ 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन The Constitution of India is a product of historical process rich with the constitutional antecedents. तो इसमें बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल प्रोसेस, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट था ब्रिटिश कॉलोनियल अपैरेटस से, जिसका काम था कि वो मैक्सिमाइज करे, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करे और अपने पेरेंट को दे जो यूके में। लेकिन वहीं से इंस्पिरेशन लेते हुए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर में उन्होंने स्टार्ट किया नेहरू रिपोर्ट का, और फिर 1935 का आया, उसमें से फिर गवर्नेंस हुआ। तो हिस्टोरिकल प्रोसेस रिच विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंटेसीडेंट्स, उसमें जब अप्लाई हुआ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द सोसाइटी, वहां से फिर डिलिबरेशन, एकोमोडेशन, फिर डिस्कशन और जो डाइवर्स व्यू उसका लिया गया हर एक सोसाइटी के बीच में, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ। मैं अगर वहां से जोड़ दूंगा, मतलब प्रवेश अगर कमेंट करना है तो। तो मैं इसको जोड़ूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से, जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोला जाता है। तो वहां पर पहले डिफाइन हुआ कि गवर्नमेंट होगी क्या, क्या उसके पार्ट होंगे। 1861 की बात करेंगे जिसमें कि बजट प्रोसेस का पहली बार डिस्कशन होगा। 1892 की बात करेंगे कि इलेक्टोरल प्रोसेस को भी इनिशिएट किया गया, तो वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जो हाउसेस का फॉर्मेशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो नहीं। फिर हम बात करेंगे कि 1909 के अंदर जो रिजर्वेशन की बात है वो देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम में अफर्मेटिव एक्शन के रूप में देखते हैं। 1919 जो मोंटेग्यू चैम्बर्स रिफॉर्म है, वहां पर हम पोर्टफोलियो सिस्टम का प्रावधान देखते हैं। उसके बाद जो कैबिनेट सिस्टम आज के रूप में हम देखते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जिसके अंदर हमने फेडरलिज्म और जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो लिया। और आखिरी में जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, साइमन कमीशन रिपोर्ट और जो लॉर्ड बर्किनहेम के चैलेंज के बाद मोतीलाल नेहरू जी रिपोर्ट, तो सारी ही चीजें एमलगेमेट हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो दिस वाज द हिस्टोरिकल प्रोसेस व्हिच लेड टू द टुडेस रिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है प्रवेश। तो प्रवेश यहाँ पे लेकिन ये भी लिखा है ना रिच विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स, तो ये एलिमेंट तो क्लियर हो गया कि हिस्टोरिकल प्रोसेस के जो आपने एग्जांपल्स दिए, बट रिच कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स को आप कैसे सब्सटैंशिएट करोगे यहाँ पे? मैंने मानसी बताया वो हिस्टोरिकल प्रोसेस था, और जो उसके अंदर मैंने चीजें बताई कि पोर्टफोलियो आया, इलेक्शन की बात हुई,
रिजर्वेशन की बात हुई, दे वर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिसिडेंट्स। लेकिन broad एक picture है। कमेंट करना है यहाँ पर प्रवेश, तो कमेंट में मैं इसमें भी कमेंट करूंगा, उन लोग जो किए थे, ब्रिटिश जो कर रहे थे, वो दे वर बेनिफिटिंग द ब्रिटिश इंटरेस्ट, बट द इंडियन नेशनल लीडर्स वेर यूजिंग दैट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर टू inculcate the spirit of resistance and national spirit, national integration within the prevailing structure, और वहां से भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बढ़ाना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल नेहरू रिपोर्ट ने पहली बार 1928 में, फिर 31 में अप्लाई हुआ एनईपी, इकोनॉमिक प्लान और फंडामेंटल राइट्स का, लाहौर सेशन का बात करते हैं, कराची सेशन का बात करते हैं, 1931 ना, 31 कराची सेशन पहली बार। वहां से फिर 35 के बाद 37 में जब सरकार बनता है प्रोविंसेस में, तब वो अप्लाई करने, तब उनको फील होता है कि भाई कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप इंटीग्रेट कर सोसाइटी के लिए काम कर सकते हो। वहां से फिर डिलिब्रेशन जो चलते आ रहा, उनका जो एक्सपीरियंस था उस समय का, वो डिलिब्रेशन, वो अकोमोडेशन करके लास्ट में फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बना। तो बोथ ब्रिटिश का भी है अपना एक्सपीरियंस, और बोथ नेशनल लीडर का भी अपना एक्सपीरियंस है, दोनों मिलकर फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो प्रोडक्ट है ना एक तरह से। तो मैं इसमें एक लाइन बोल दूंगा आपकी ही लाइन के साथ, कि जो ब्रिटिश फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट थे, दे वर ड्रिवन बाय discrimination and antagonism, but the constitutional antecedents in the present constitution of India, they are based on the principle of inclusivity and democracy. ठीक, next I think नीचे